We are inspired by 3 Kartavya. We will develop 7 high-speed rail corridors. I propose to 1. Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना नवा केंद्रीय बजट पेश किया। इस बार के बजट में सरकार ने 3 कर्तव्यों पर फोकस किया है। पहला, अस्थिर ग्लोबल माहौल में स्थिरता को बनाने के लिए आर्थिक विकास में तेजी लाना और उसे बरकरार रखना। दूसरा, लोगों की उम्मीदों को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का विकास करना। तीसरा, सार्थक भागीदारी के साथ हर परिवार, समुदाय, धर्म और क्षेत्र की संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच को सुनिश्चित बनाना। We are inspired by 3 Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second Kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third Kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas. इन्हीं कर्तव्यों को ध्यान में रखकर बजट में अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का रोड मैप तैयार किया गया है। जब वित्त मंत्री बजट पेश कर रही थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेज थपथपाकर बजट की सराहना करते नजर आए। इस बार के बजट में रोजगार, स्वास्थ्य, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आम आदमी से लेकर गरीब और किसानों के लिए कई घोषणाएं की, लेकिन मिडिल क्लास को इनकम टैक्स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं दी। उन्होंने आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। इनकम टैक्स स्लैब पहले की तरह ही रहेंगे। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि वैश्विक अनिश्चितता और घरेलू मांग को संतुलित करने की दिशा में भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। बजट में टैक्स पेयर्स, निवेशक, किसान, मिडिल क्लास और उद्योगों के लिए कई बड़े ऐलान हुए। बजट में ऐलान किया गया कि 17 एंटी कैंसर दवाओं और 7 अन्य दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से मुक्त रखा जाएगा। इससे शुगर और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। साथ ही फार्मा सेक्टर में 10,000 करोड़ का निवेश होगा। वहीं 1,000 मान्यता प्राप्त क्लिनिकल साइट्स बनाई जाएंगी, जहां साइंटिफिक रिव्यू हो सकेंगी। To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. वित्त मंत्री ने कनेक्टिविटी को लेकर भी बड़े ऐलान किए हैं। देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ये कॉरिडोर मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, सिलीगुड़ी से वाराणसी बनाए जाएंगे। In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. बजट में ऐलान हुआ कि भारत को ग्लोबल बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। इसके लिए अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 5 रीजनल मेडिकल हब बनाए जाएंगे। इसमें हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स भी बनेंगे, जिनमें आयुष केंद्र होंगे। To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs
will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers and infrastructure for diagnostics, post-care and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to 1. Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2. Upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3. Upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training and awareness for traditional medicine. इसके अलावा सेमीकंडक्टर मिशन, प्रोडक्शन और इंडियन आईपी बनाने, सप्लाई चेन बनाने के लिए प्रावधान किए जाएंगे। इतना ही नहीं, रेयर अर्थ मटेरियल के लिए उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में डेडिकेटेड मिनरल पार्क बनाए जाएंगे। टेक्सटाइल सेक्टर को भी सरकार बूस्टर देगी। 5 लाख से ऊपर आबादी वाले शहरों में सरकार इंफ्रा बूस्ट करेगी। मोदी सरकार के बजट में एक और बड़ा ऐलान हुआ कि हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। घोषणाओं के बीच एक बड़ा फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पारंपरिक उद्योग को नए ढांचे में आगे बढ़ाने पर दिखा है। इसी कड़ी में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का ऐलान हुआ। इस योजना को टेक्सटाइल स्किल्स इकोसिस्टम को मॉडर्न बनाने वाले समर 2.0 मिशन से जोड़ा गया है। बजट में ग्रामीण युवाओं के लिए एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने की बात कही गई है। संसद में बजट 2026 पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि करीब 2.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुके हैं। इस बजट के जरिए राजस्व घाटे को कम करने पर सरकार का फोकस रहा है। वित्त मंत्री ने बताया कि राजकोषीय घाटा 2026-27 में 4.3% रहने का अनुमान है, जबकि चालू वित्त वर्ष में ये 4.4%